آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے مینڈیلین لا۔ مینڈیلین لا میں ہم آج جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے مینڈلز لا آف سیگریگیشن۔ اس ٹاپک کو میں نے بہت ایزی کر کے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے، چونکہ اگر آپ کو پتہ ہے یہ ٹاپک جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ٹف رہتا ہے، ہمیشہ مشکل رہتا ہے، اور کوشچن مارک کی طرح اس کو ٹاپک ہمیشہ یہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے میرے کچھ ایک دو ٹاپک ہے جس میں کچھ میں نے جینیٹکس بیسک ٹرمز بتائے ہوئے ہیں، تو آپ جا کے پہلے وہ سیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہ ٹاپک مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آنے والا ہے، کیونکہ وہ ٹرمز یہاں پہ بار بار استعمال ہونے والے ہیں۔ چلو ذرا سمجھتے ہیں کہ مینڈلز لا آف سیگریگیشن کیا ہوتا ہے۔ مینڈلز لا آف سیگریگیشن کے مطابق یا پھر اس قانون کے مطابق گیمیٹس فارمیشن یا پھر میوسس سٹیج کے دوران الیلز ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور جو الیل گیمیٹس فارمیشن یا پھر میوسس سٹیج کے دوران الیلز ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، وہی الیلز پھر کیا ہوں گے، رینڈم فرٹیلائزیشن کے دوران دوبارہ آپس میں مل جائیں گے، یونائٹ ہو جائیں گے۔ چلو ذرا پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایک الیل ہے، یہ الیل جو ہے الگ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ یہ الیلز ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ کب الگ ہوں گے؟ گیمیٹ فارمیشن کے دوران۔ تو گیمیٹس فارمیشن کے دوران الیل ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، اور یہی الیلز ایک بار پھر کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ کب مل جائیں گے؟ فرٹیلائزیشن کے دوران۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں، گیمیٹس فارمیشن کے دوران الیلز ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اور رینڈم فرٹیلائزیشن کے دوران وہی الیلز دوبارہ آپس میں کیا ہو جائیں گے، یونائٹ ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ یہاں پر اس لا میں مینڈل نے جس پلانٹ پر کام کیا تھا اسے ہم کہتے ہیں پی پلانٹ، مٹر کے پودے پر۔ پی پلانٹ پر مینڈل نے دو پیرنٹ اٹھائے تھے، ایک تھا میل پیرنٹ اور ایک تھا فیمیل پیرنٹ۔ اچھا، دوسری بات یہ میں بتا دوں کہ جو میل پیرنٹ اور فیمیل پیرنٹ جو پی پلانٹ ہے، مٹر کا جو پودا ہے، پی پلانٹ کے مینڈل نے تقریباً اس میں 7 کنٹراسٹنگ ٹریٹس اس نے دیکھے تھے، 7 خصوصیات مینڈل نے دیکھے تھے۔ ان 7 خصوصیات میں، ان 7 ٹریٹس میں مینڈل نے صرف اور صرف یہاں پہ اس لا کے مطابق صرف اور صرف ایک ٹریٹس کو اس نے اسٹڈی کیا، ایک خصوصیت نے اس لا میں اس نے اسٹڈی کیا۔ اسی لیے اس لا کو ہم کہتے ہیں مونو ہائبرڈ کراس، اس کو ہم مونو ہائبرڈ کراس بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مینڈل نے اس لا میں صرف اور صرف ایک خصوصیت کو اسٹڈی کیا تھا، تو ہم اس کو اسی لیے مونو ہائبرڈ کراس کہتے ہیں۔ اچھا، مینڈل نے اس لا میں جس کریکٹرسٹکس کو یا جس ٹریٹ کو اس نے اسٹڈی کیا تھا وہ ہے پلانٹ ہائٹ۔ وہ کیا ہے؟ پلانٹ ہائٹ۔ پلانٹ ہائٹ ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ کا ہائٹ۔ اچھا، پلانٹ ہائٹ آپ کو اس کے 2 کنٹراسٹنگ پیئرز آپ کو ان کو ملیں گے۔ پلانٹ ہائٹ کے 2 کنٹراسٹنگ پیئرز ہوتے ہیں، مطلب ان کی 2 شکلیں آپ کو مل جائیں گے۔ پلانٹ ہائٹ یا تو ٹال ہوگا یا تو شارٹ ہوگا۔ شارٹ بھی کہتے ہیں، ڈوارف بھی کہتے ہیں۔ جو ٹال ہوتا ہے یہ پھر آپ کو مزید 2 اور کنڈیشنز میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹال آپ کو کیپیٹل ٹی میں مل جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ہوموزائگس ڈومیننٹ۔ ٹال آپ کو کیپیٹل ٹی اینڈ اسمال ٹی میں بھی مل جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹروزائگس ڈومیننٹ۔ اسی طرح جو پلانٹ ہائٹ ہے آپ کو ڈوارف، شارٹ یا چھوٹے قد کے بھی آپ کو پلانٹ ہائٹ مل جائے گا، جو ہم کہتے ہیں کہ اسمال ٹی سے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، جو کہ ہوموزائگس کنڈیشن میں آپ کو مل جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے اسلام میں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اگر جینیٹکس میں کچھ الیلز اگر آپ کو کیپیٹل لیٹر میں آپ کو نظر آئیں گے تو وہ ہمیشہ ڈومیننٹ کہلائیں گے۔ جو الیلز آپ کو شارٹ لیٹر میں، چھوٹے لیٹر میں آپ کو نظر آئیں گے تو وہ ہمیشہ ریسیسو کہلائیں گے۔ تو ریسیسو اور ڈومیننٹ کون سے ہوں گے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، مینڈل نے یہاں پہ جو میل اور فیمیل کا جو کراس کروایا تھا تو وہ دراصل کروایا تھا کراس فرٹیلائزیشن۔ تو یہاں پہ کراس فرٹیلائزیشن کروایا گیا تھا، کراس فرٹیلائزیشن میں میل اور فیمیل سے الیلز لیے گئے تھے، صرف اور صرف ایک خصوصیت ایک ٹریٹ کی بنیاد پر۔ اچھا، جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو الیل لیے تھے وہ تھا پلانٹ ہائٹ، تو یہاں پہ پلانٹ ہائٹ کے الیل تھے۔ جو الیل اس نے لیے تھے وہ پیور بریڈر اس نے الیل لیے تھے، پیور بریڈر۔ تو پیور بریڈر تھال آپ کے پاس ہے اور پیور بریڈر
शॉर्ट आपके पास हैं और इनको आपस में क्रॉस करवाया था। प्योर ब्रीडर से मुराद है कि आपको होमोजाइगस में आपको अलील्स मिलेंगे या नज़र आएंगे तो हम उसे प्योर ब्रीडर कहते हैं। तो ये हमारे पास अलील्स आ चुके हैं। अब असल स्टोरी यहाँ से या इसके बाद स्टार्ट होती है। रूल्स ये है कि जब आप इनको क्रॉस करवाओगे तो उससे पहले आपने इनके गैमेट्स बनाना होंगे। अलील के आपने गैमेट्स बनाना होगा। गैमेट्स बनाने के लिए आपने 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं इस मेल पेरेंट के नीचे, और उस फीमेल पेरेंट के नीचे भी आपने 2 गैमेट्स ड्रॉ करने होंगे। अगला रूल ये है कि हर गैमेट में सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम एक जीन आ सकता है, 2 जीन कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो हर अलील से सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन आ सकता है, 2 जीन नहीं आ सकते या 2 से ज़्यादा जीन नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हमने एक जीन इस गैमेट में लाया और एक जीन हमने इस गैमेट में लाया। सेम केस में भी यहाँ पर हर गैमेट में एक एक जीन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने गैमेट्स बना लिए, हमने वो रूल फॉलो कर दिया। दूसरा रूल ये है कि जो मेल के गैमेट हैं वो आपने एक साइड पर ड्रॉ करने होंगे और जो फीमेल के गैमेट्स हैं वो आपने दूसरे साइड पर आपने क्या करने होंगे, ड्रॉ करने होंगे। तो एक पेरेंट के गैमेट आपने एक साइड पर ड्रॉ करना है और दूसरे फीमेल जो दूसरा पेरेंट है उसके गैमेट्स आपने दूसरे साइड पर ड्रॉ करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आया, आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम। प्यूनेट स्क्वायर को हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, तो पिछले लेक्चर में आप इनको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इस प्यूनेट डायग्राम को आपने क्या करना होगा, ये जो एक पेरेंट के गैमेट्स हैं आपने इसको क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा पहले इसके साथ। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले हम इसको इन दोनों के साथ वो करेंगे, क्रॉस करेंगे, और फिर इस गैमेट को हम फिर इसके साथ क्रॉस करेंगे। तो अगला तरीक़ाकार ये है कि आपके पास जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी क्रॉस हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो जाएगा, फिर कैपिटल टी दोबारा स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा। अब इसकी बारी है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो जाएगा, फिर कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये आपके पास P1 आ गए। ठीक है, ये आपके पास P1 आ गए। P1 हम इसको पेरेंट्स को कहते हैं। ठीक है, आपके पास P1 है और ये जो आपके पास ये आपके पास F1 उनके बच्चों को कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट यूँ आए। इस रिजल्ट को समझने के लिए हमने जाना होगा पीनोटाइप और जीनोटाइप रेशो हमने बनाना होगा इसके मुताबिक। अच्छा, पीनोटाइप रेशो आपको क्या बताता है? पीनोटाइप रेशो आपको बताता है कि बच्चे किस तरह नज़र आते हैं या बच्चे की लुक किस तरह है, आपको फिजिकली बच्चे किस तरह नज़र आते हैं। अगर आप देखें ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट टॉल है, तो 4 के 4 प्लांट आपको टॉल नज़र आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो नज़र आएंगे वो टॉल प्लांट हमारे पास नज़र आएंगे। तो हमारे पास जो है 4 प्लांट हमारे पास कौन से हैं, टॉल हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कोई भी प्लांट जो है वो शॉर्ट प्लांट नहीं है, छोटे हाइट के प्लांट हमारे पास नज़र नहीं आए, तो हम उससे कंसिडर ये करेंगे कि जो हमारे पास ड्वार्फ था, छोटे हाइट के जो प्लांट थे वो 0 थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेशो आ रहे 4:0, 4 टाल प्लांट थे, लंबे हाइट के प्लांट थे, और 0 जो थे वो ड्वार्फ छोटे हाइट के प्लांट थे। अगर आप इसके परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज जो है कुछ यूँ होगा कि 100% जो है आपके पास टॉल आ रहा है और 0% आपके पास ड्वार्फ प्लांट आए। इसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्यों सारे के सारे प्लांट टॉल थे, ड्वार्फ नहीं थे, या फिर ये प्लांट्स नॉर्मल भी हो सकते थे। तो उसकी कंडीशन ये है, उसका रीज़न ये है कि ये जो टॉल प्लांट की जीन्स हैं ये मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट हो गए स्मॉल हाइट के जीन्स के ऊपर। तो टॉल हाइट के जो जीन्स हैं वो टोटली तौर पर डोमिनेंट हैं और जो स्मॉल हाइट के जो जीन्स है वो रिसेसिव हैं।
तो ये जो कैपिटल टी है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल टी पर। इसीलिए कैपिटल टी ने खुद को शो किया है और स्मॉल टी ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी खसूसियात को शो नहीं की। इसीलिए सारे के सारे प्लांट क्या आए थे, टॉल आए थे। तो यहाँ पे फिनोटाइप हमारे पास जो रेशो है 4:0। इसके बाद हम जीनोटाइप रेशो की तरफ जाते हैं। जीनोटाइप में हम जेनेटिक मेकअप देखते हैं, जीन्स को देखते हैं कि कौन से जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में आए हुए हैं। तो अगर आप देखिए तो ये अब दोनों जीन अलग अलग है, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये दोनों जीन भी अलग अलग है तो हम इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो 4 के 4 प्लांट जो हमारे पास आए थे वो आपके पास कौन से आए थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आए थे। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आए थे। तो 4 प्लांट्स हमारे पास आ गए हेट्रोजाइगस। कोई भी 2 जीन आपस में सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास होमोजाइगस है, कोई भी प्लांट होमोजाइगस नहीं है। मतलब आपको सेम जीन यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो 0 आपके पास होमोजाइगस है और जो 4 आपके पास, जो 4 आपके पास है वो है हेट्रोजाइगस। अगर आप इसका परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास जो है 100% आपके पास हेट्रोजाइगस प्लांट आया जीनोटाइप रेशो के मुताबिक और 0% आपके पास होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस 100% और 0% आपके पास होमोजाइगस। जीनोटाइप रेशो हमारे पास आ गई वो 4:0 और फिनोटाइप जो रेशो थी वो 4:0। यहाँ पे जो बच्चे मिले थे F1 में, मेंडल को ये रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आया। मेंडल ने क्या किया, ये जो F1 थे, ये जो P1 के जो बच्चे थे F1, उसको उठाया और उसको आपस में क्रॉस किया। उसको उठाया और उसको आपस में क्या किया, क्रॉस किया। तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ क्रॉस। तो इन बच्चों को उठाया, F1 के बच्चों को उठाया, उसको आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो ये हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, ये आपके पास ये बच्चे उठाए थे, तो आपके पास है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको आपस में क्रॉस करवाया था, सेल्फ क्रॉस। वही आपके पास वही रोल अप्लाई होगा। रोल ये है कि आपने पहले क्या बनाना होगा, 2 सर्कल आपने लगाने होंगे, क्योंकि आपने क्या बनाना होगा, आपने यहाँ पे गैमेट्स बनाने होंगे। तो गैमेट्स बनाने के लिए आपने 4 सर्कल ड्रॉ करने होंगे। हर सर्कल में क्या आएगा, कोई एक जीन आएगा। तो ये एक जीन इधर आ गया और दूसरा जीन इधर आ चुका है, फिर एक जीन आपके पास इधर आ चुका है और उनमें से एक जीन आपके पास इधर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने गैमेट्स फॉर्मेशन कर दिया, हमने गैमेट्स बना लिए, क्योंकि अलील भी इधर अलग अलग हो चुके हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। उसी तरह हम ये करेंगे कि एक पेरेंट के गैमेट्स एक तरफ ड्रॉ करेंगे और दूसरे पेरेंट के गैमेट दूसरी तरफ हम ड्रॉ करेंगे, चूँकि जो हम करते आ रहे हैं। तो होगा ये आपके पास कैपिटल टी, स्मॉल टी, हमने इसको एक तरफ ड्रॉ कर दी और इसको हम दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करने का तरीका बहुत ईजी है। आपने ये करना होगा कि पहले इसको इन दोनों के साथ क्रॉस करना है, फिर इसको इन दोनों के साथ क्रॉस करना है। तो कैपिटल टी के साथ क्रॉस हो जाएगा, ठीक, और कैपिटल टी फिर स्मॉल टी के साथ क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह अब इसकी बारी है, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ क्रॉस हो जाएगा। तरीकाकार ये है कि पहले कैपिटल टी लिखो, फिर स्मॉल टी लिखो, फिर स्मॉल टी के साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको कुछ यूँ नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है आपके पास ये P2 बन जाएगा और ये वाला आपके पास F2, मतलब ये आपके पास सेकेंड जनरेशन आ रहा है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में हम क्या करेंगे, इनके बच्चों को देखने के लिए फिर हम दोबारा 2 रेशो बनाएंगे। पहला रेशो है फिनोटाइप रेशो, दूसरा है जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो में अगेन मैं बता रहा हूँ कि हम किसी जो बच्चे होते हैं हम उसको बाहर से देखते हैं, हम उसकी लुक देखते हैं, फिजिक हम उनको देखते हैं। तो अगर आप ये इनके बच्चों को देखो तो ये आपके पास, आप खुद मुझे बताओ, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो डोमिनेंट होते हैं वो आपके पास ठाल है। अच्छा, ये आपके पास कौन सा, ये प्लांट ठाल है, ठीक है, ये प्लांट भी ठाल है, लंबे कद का प्लांट है, ये प्लांट भी ठाल है। तो आपके पास 1, 2 और 3 प्लांट आपके पास ठाल है। तो हम ये कहते हैं कि जो ठाल है आपके पास वो 3 आपके पास ठाल प्लांट है।
और चूंकि ये जो एक प्लांट है ये आपके पास शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, तो ड्वार्फ आपके पास क्या है 1 है। और अगर आप इसका परसेंटेज निकालो तो परसेंटेज ये कि जो 75% था वो टाल प्लांट और जो सिर्फ और सिर्फ 25% है वो ड्वार्फ प्लांट। तो ये हमने ये निकाले। तो रेशो हमारे पास क्या है 3:1, 3 टॉल को शो कर रहा है और 1 ड्वार्फ को शो कर रहा है। जीनोटाइप में फिर हम दोबारा जेनेटिक मेकअप देखते हैं, जीन्स को देखते हैं कि कौन से जीन पेरेंट्स से उनके बच्चों में आए हुए हैं। ये आपको दोनों एक जैसे जीन्स नज़र आ रहे हैं, दोनों एक जैसे जीन्स नज़र आ रहे हैं ना। तो जब हमने एक जैसे जीन्स को देखा तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो लिहाजा सबसे पहले आपके पास क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट आपके पास 1 है, तो 1 आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक। इसके बाद ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो आपके पास 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ गए, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आपके पास आ गए, ठीक है, 1 और 2, तो 2 आपके पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ गए। चूंकि ये दोनों जीन फिर सेम है, बल्कि सेम तो है लेकिन रेसेसिव है, तो हम ये कहते हैं कि ये होमोजाइगस रेसेसिव है और सिर्फ इनकी तादाद कितनी है 1 इनकी तादाद है। तो हम ये कहेंगे कि आपके पास क्या है होमोजाइगस रेसेसिव है आपके पास, ठीक है ये। और होमोजाइगस रेसेसिव सिर्फ कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 है आपके पास। अगर मैं इसका रेशो बनाऊं तो उसका रेशो मैं कुछ यूं बनाऊंगा कि 1 आपके पास है, फिर 2 आपके पास है, फिर आपके पास दोबारा 1 है। तो रेशो आएगा 1:2:1, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये आपके पास है, और जो 1 है फिर आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव। तो इनके फिर होमोजाइगस रिसेसिव दोबारा इनकी जीन सेम हुए। अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज होगा 25% आपके पास 1 होगा जो आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, और 50% जो आपके पास है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, और 25% अगेन जो आपके पास है ये फिर दोबारा आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है। तो हमने एक तो इनका रेशो निकाल दिया और साथ साथ में हमने परसेंटेज के साथ बता दिया कि इनकी परसेंटेज कितनी आ रही है। दोबारा मैं आपको सिर्फ एक रेशो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। F1 की अगर आपसे कोई रेशो पूछे कि F1 की रेशो आपके पास क्या है, तो F1 की जो आपके पास पीनोटाइप रेशो होती है वो 4:0 आपके पास आ रहा है। पीनोटाइप रेशो 4 टाल और 0 ड्वार्फ को शो कर रहा है। जीनोटाइप की रेशो है वो 4:0, जीनोटाइप में F1 की रेशो है। F2 की रेशो जो आपके पास आ रही है, पीनोटाइप की जो रेशो वो 3:1 आपके पास आ रही। F2 की जो जीनोटाइप रेशो है वो है 1:2:1। तो ये आपके पास जीनोटाइप की F2 की रेशो थी। तो हमने रेशो भी निकाल दी। बस आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।